Hello, good morning everybody. Here is Deependra Singh Shekhawat and I welcome you to Bhartiya online classes and to my YouTube channel. Please like and subscribe if you feel it's beneficial for you. Today we will start our second chapter of book Rainbow, a room 10 by 8. A room 10 by 8. It's a short story written by famous Indian English writer K.S. Duggal. First of all, we'll discuss about its writer K.S. Duggal. K.S. Duggal, he is a renowned Indian English writer, renowned Indian English writer, he has written 500 about 500 short stories. He has written just 500 short stories, 10 novels, 50 plays, 500 short stories, 10 novels, and 50 plays. And he has also written his autobiography. He received the award Padma Bhushan by Indian government. Padma Bhushan by Indian government, Padma Bhushan award. Now let's discuss about the theme of the story, A Room 10 by 8. This is the story about generation gap, mutual love and understanding. ये जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी written by K.S. Duggal, it's about, थीम की बात कर रहे हैं, it's about mutual understanding, generation gap, mutual understanding and generation gap, lack of mutual understanding, कि हमारे बीच में, रिलेशंस के बीच में, फैमिली के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की लैक है एंड जनरेशन गैप है. ये इसकी थीम है. इसकी वजह से लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन गैप which is emerging as a serious threat to our society. Today, it's really a serious threat to our society. We have a great problem about generation gap and mutual understanding. Means we really have lack of mutual understanding. We can't understand our parents. We can't understand our grandparents. We can't understand our son, daughter, and there is really generation gap. We feel insecure about our family members, means they are elder than us and
junior DNS, younger DNS. It's really a great threat, serious threat to our society. आज हम हमारे पेरेंट्स को नहीं समझ सकते, उनके फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, व्हाट दे थिंक अबाउट अस वो हम नहीं समझ सकते, रियली वो क्या चाहते हैं ये हम नहीं समझ सकते, हमसे कितना वो प्रेम करते हैं, कितना हमारे बारे में सोचते हैं हम नहीं समझ सकते. It's the problem of generation gap. Really, it's the problem of generation gap and lack of mutual understanding. ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आज एक हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन के आ रहा है. रियली इट्स अ ग्रेट थ्रेट टू आवर सोसाइटी. तो ये जो स्टोरी है इस सीरियस थ्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने सामने कि किस तरह से ये जनरेशन गैप और लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी सोसाइटी के लिए एक डेंजर बन के सामने आया. The story is about मिसेस मालिक. कैरेक्टर है उनकी बात कर रहे हैं, मिसेस मालिक, मिस्टर मालिक, डियर डॉटर इन लॉ, इनकी डॉटर इन लॉ है. They are the main characters of this story. इनके अलावा इनका they have their son, they have their mother. Means Mrs. Malik has her mother-in-law in this story. Mother-in-law. इनकी mother-in-law है, यानी कि मिस्टर मालिक की मदर है स्टोरी में. डॉटर-in-law है, इनका सन है, वो भी स्टोरी का पार्ट है. जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है मिसेस मालिक और हर डॉटर इन लॉ. मिसेस मालिक एंड हर डॉटर इन लॉ. इनके जनरेशन गैप को दिखाया है. द जनरेशन गैप ऑफ मिसेस मालिक एंड हर मदर इन लॉ, एंड इट्स द स्टोरी शोज द जनरेशन गैप एंड लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मिसेस मालिक एंड हर डॉटर इन लॉ. ये शो करता है स्टोरी में. मिसेस मालिक व्हाट थिंक अबाउट हर मदर इन लॉ मीन्स शी थिंक्स वी हैव ऑल द राइट्स ऑन आवर प्रॉपर्टी, वी हैव ऑल द राइट्स ऑन मिसेस मालिक, मिस्टर मालिक and his property. We are the real owner of this house, our property, and we have nothing to think about our mother-in-law. She is here, or she can live for 5-6 years. Afterwards, we have all the property. So we have no duty towards our mother-in-law, our parents. ये सोचती है. इनके जाने के बाद जब इनकी डॉटर इन लॉ आती है, she has the same thinking. Means Mrs. Malik, what she like, she doesn't like about her mother-in-law because they have generation gap. Because they have lack of mutual understanding, and same thing occurs here, just here. What Mrs. Malik think, she is completely different. इससे जो इनका जनरेशन गैप सामने आया वही सेम इधर आया. अब ये मॉडर्न है और ये ओल्ड विचारों की है, ओल्ड थिंकिंग से की है. तो ये प्रॉब्लम आती है इसमें. स्टोरी में होता क्या है कि ये जब नया घर बनवाते हैं मिसेस मालिक एंड मिस्टर मालिक अपने लिए, तो ये सोचते हैं कि हमारी जो मदर इन लॉ है ये 2-3 इयर्स के लिए सरवाइव करेगी. आफ्टरवर्ड्स शी विल गो टू हर फाइनल डेस्टिनेशन, मींस शी विल डाई. और इनको हम वो रूम देते हैं, रूम 10/8, जो रियल में
जो आर्किटेक्ट ने डिसाइड किया है एज स्टोर रूम, मतलब घर में जो स्टोर रूम बनने वाला है वो रूम हम हमारी मदर इन लॉ को दे देते हैं। ये सोचती है अपनी मदर इन लॉ के लिए, मीन्स ये सोचती है कि वी आर द रियल ओनर ऑफ द हाउस, वी हैव ऑल द प्रॉपर्टी, शी डजंट नीड टू लिव एनी रूम। और ये इनके लिए डिसाइड करते हैं शी कैन लिव इन ए स्टोर रूम, ए रूम 10 बाई 10, रूम 10 बाई 8, इस साइज की रूम ये रह लेगी जो कि रियल में एक स्टोर रूम होता है। ये जो अपनी मदर इन लॉ के लिए सोच रही है वही सेम चीज ये जो डॉटर इन लॉ आ जाएगी वो अपनी मदर इन लॉ के लिए सोचेगी। यानी कि मिसेस मलिक ये भूल गई कि सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी। ये भूल गई कि मेरी सास भी कभी बहू थी और आज मैं बहू हूं तो कल मैं भी किसी की सास बनूंगी। आज जो मैं चीज अपनी मदर इन लॉ के लिए सोच रही हूं वही मेरी डॉटर इन लॉ आने वाले टाइम में मेरे लिए सोच सकती है। और सेम थिंग ये होता है, रियली इट हैपेंड, ये बिल्कुल ये होता है। अब ये जो डॉटर इन लॉ है वो भी अपनी इस मदर इन लॉ के लिए सोचती है कि शी कैन लिव इन जस्ट अ रूम 10 बाई 8, इसमें रह सकती है। तो देखो स्टोरी किस तरह से एक सटायरिकल वे में लिखी हुई है। इट इज अ स्टोरी रिटन इन सटायरिकल वे। ये थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी है अपनी सोसाइटी के लिए। आज ये जानना जरूरी है, ये स्टोरी रियल में समझना जरूरी है कि आज जो हम अपने बड़ों के लिए सोच रहे हैं वही अपने छोटे परिवार में वही देखते हैं। आज जो अपने बच्चे हैं, छोटे फैमिली के छोटे बच्चे हैं, वो वही सीखते हैं जो हम उन्हें के सामने शो कर रहे हैं। आज हमारे पेरेंट्स के लिए किस तरह का बिहेवियर है, what behavior we have towards our parents, our grandparents, वो सेम बिहेवियर है वो हमें मिलेगा फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, फ्रॉम आवर ग्रैंड चिल्ड्रन। इसलिए हमें अपने बड़ों के लिए हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छे विचार रखने हैं। इस स्टोरी में यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं मिस्टर के.एस. दुग्गल। तो स्टोरी क्या है वो देखते हैं। शॉर्ट स्टोरी है, रूम 10 बाई 8। हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं स्टोरी का। This room might be 10 by 8, says Mrs. Malik, pointing to a square in the draft plan lying on table before them. टेबल के सामने एक जो ड्राफ्ट प्लान था, मकान का जो नक्शा है वो पड़ा था, और वो बोलती है दिस रूम माइट बी 10 by 8। मिसेस मलिक पॉइंट करती है और वो बोलती है कि ये 10 by 8 का रूम हो सकता है। It was the third time that she had made this suggestion, and it was the third time, means already 2 times she had made the suggestion, and now again means third time she just saying it may be room 10 by 8. It seemed it didn't register on either husband or the architect engaged to design the house. Means she was sitting with husband and with architect, and it seems they both were ignoring her idea. The Maliks were going to have a house of their own in Delhi. The Maliks means Malik family. The Maliks means Malik family. जो Malik family है मतलब Mrs. and Mr. Malik हैं, they were going to have their own house in Delhi. They had purchased a plot in most fashionable colony of the town sometimes ago. Just sometimes ago, 5-6 months ago, they purchased a plot in most fashionable colony of New Delhi. Now that they were posted back in Delhi, they thought they might as well have the house built. अब उनका ट्रांसफर हो गया है, पहले अलग जगह था, फिर अलग जगह था, और अब दिल्ली में हो गया है, and in Delhi they have their own plot. तो वो डिसाइड करते हैं, they decided that we should build our own home here now.
In her heart of hearts, Mrs. Malik also decided that after completion of house, she would stay back in Delhi, even if her husband was transferred to another station. In her heart of hearts मतलब अपने मन ही मन में, अपने दिल ही दिल में वो डिसाइड कर चुकी है, she has decided कि अगर उनके हस्बैंड का ट्रांसफर कहीं और हो जाता है, और स्टेशन में हो जाता है, तो भी वो यहीं रहेगी अपने खुद के घर में दिल्ली में। She was sick of posting मतलब उनका जो ट्रांसफर हो रहा है from one place to another place, she was sick of मतलब बड़ी परेशान हो गई है, दुखी हो गई है मिसेस मलिक, उनके हस्बैंड का बार बार ट्रांसफर होता रहता है, इस वजह से बड़ी दुखी हो गई है। Every other year they were moved to new place, और हर दूसरी साल उन्हें अलग प्लेस पे जाना पड़ता, कभी दिल्ली, कभी चेन्नई, कभी कोलकाता, कभी जोधपुर, कभी जयपुर, अलग अलग जगह पे उन्हें जाना पड़ता है, और वो बड़ी परेशान हो गई थी। Now that the children were grown up, अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, It was not desirable to shift them from school to school. अब ये डिजाइन मतलब ठीक भी नहीं लग रहा है कि उनको स्कूल भी चेंज कर दें। छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, प्ले ग्रुप, प्राइमरी सेक्शन, तो उनका स्कूल हम चेंज कर सकते हैं। बट व्हेन चिल्ड्रन एडमिटेड टू सीनियर स्कूल, सीनियर क्लास, 10th 12th, तो डिजायरेबल नहीं होता, ठीक नहीं होता कि उनकी क्लास हम स्कूल हम बार बार चेंज करें। Mr. Malik said if he must, Mr. Malik could go all alone. तो मिसेस मलिक बोलती है कि अगर आपको जाना पड़ा, आपका ट्रांसफर कहीं दूसरे प्लेस पे हुआ, you can go all alone. All alone means बिल्कुल अकेले, आप अकेले जा सकते हो, थोड़ा एम्फेसिस दिया है। Alone means होता है अकेला, all alone means होता है बिल्कुल अकेला। आप अकेले जा सकते हो, आप बिल्कुल अकेले जा सकते हो, यानी थोड़ा एम्फेसिस दिया है बात पे। She would settle down permanently in Delhi with children, बच्चों के साथ में यहीं पे permanently settle हो जाऊंगी मैं। She would have her mother-in-law for company, and after all, Mrs. Malik thinks after all, I have my mother-in-law for my company. Mr. Malik had no objection to it, और Mr. Malik को कोई objection नहीं था अगर उनका ट्रांसफर होता है एनी अदर प्लेस, वो जा सकते हैं और यहाँ पे बच्चों के साथ और मदर के साथ में ये सेटल डाउन हो सकती है इन आवर न्यू होम व्हिच इज गोइंग टू बिल्ड। This room might be 10 by 8, Mrs. Malik repeated, and again fourth time, again for 3 times, just we have discussed 3 times already. She have given her view about room 10 by 8. Now fourth time she told this might be room 10 by 8. Husband was attending to telephone call in adjacent room. उनके जो हस्बैंड थे वो एडजेसेंट का मतलब होता है नियर बाय रूम, जो एक रूम से सटा हुआ दूसरा रूम है, एडजेसेंट रूम है। देखो ADJ, इससे बनने वाले अपनी इंग्लिश डिक्शनरी में अबाउट 11-12 वर्ड्स, दे आर अबाउट 11-12 वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम ADJ। उस सब में डी साइलेंट होता है, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है सब में डी साइलेंट रहेगा। जो अपने काम के हैं वो 3-4 वर्ड्स हैं, जैसे एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब नियर पास वाला जो रूम है। एडजेक्टिव इंग्लिश ग्रामर में वर्ड है एडजेक्टिव, अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है एडजेक्टिव है। अजर्न हम यूज करते हैं वर्ड, देखते हैं द कोर्ट इज अजर्न, द कोर्ट इज अजर्न, वो एडजर्न नहीं, वो भी अजर्न है। द कोर्ट इज अजर्न है कि आज की सुनवाई है वो यहीं पे खत्म होती है, अगली सुनवाई होगी। इसके अलावा है एडजस्ट, इसके अलावा वर्ड है एडजस्ट, ये भी अपने काम आते हैं। ये 4-5 वर्ड्स अपने काम आते हैं, और जो टोटल जो वर्ड्स हैं नियर अबाउट 10-11-12 वर्ड्स हैं, ADJ से शुरू होना, सबका जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें डी साइलेंट रहेगा। तो ये बोलती है कि
husband was attending a telephone call in the adjacent room, यानी कि नेक्स्ट रूम जस्ट पास वाला रूम है, वहां पे फोन कॉल पे बात कर रहे हैं. बट दिस इज a store, the architect explained to Mrs. Malik. आर्किटेक्ट बोलता है बट दिस इज स्टोर रूम. मींस मिसेस मलिक wanted to say this may be room 10/8, लेकिन आर्किटेक्ट बोलता है बट दिस इज स्टोर रूम, ये तो स्टोर रूम है, ये रूम कैसे बन सकता है? Yes, but I thought it could be my mother-in-law's room. लेकिन मैं सोचती हूँ कि it could be my mother-in-law's room. ये मेरी mother-in-law का रूम हो सकता है. It might be my mother-in-law's room, and after her it might be used as a storeroom. और उनके जाने के बाद, मतलब उनके स्वर्ग सिधारने के बाद ये स्टोर रूम हो सकता है. We can use it as a storeroom, no problem. आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, और लगा आर्किटेक्ट समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या बात कर रहे हैं. ये जो नक्शे में ड्राफ्ट में ये स्टोर रूम है और ये कह रही है कि रूम बन सकता है छोटा. ही लुक्ड पजल्ड बाय मिसेस मालिक्स ऑब्जर्वेशन, और वो बड़ा पजल हुआ उसके ऑब्जर्वेशन से कि ये क्या बोलना चाह रही है. तो इस तरह से स्टार्टिंग देखा हमने स्टोरी में. कैरेक्टर हमारे सामने आए मिसेस मालिक, मिस्टर मालिक, जिनका कोई खास रोल नहीं है, कोई डायलॉग्स भी नहीं है, और मिसेस मलिक नया अपना तो घर बना रही है, आर्किटेक्ट है इनके साथ में, ड्राफ्ट तैयार कर रखा है, दिल्ली में मकान बना रहे हैं. मिस्टर मलिक का बार बार ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अब ये दिल्ली में सेटल हो रहे हैं और दिल्ली में अपना खुद का घर बना रहे हैं, वो भी मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी में. यहां पे मिसेस मलिक अपने आर्किटेक्ट को बोल रही है दिस में बी रूम 10/8, कि ये 10/8 का रूम हो सकता है. आर्किटेक्ट ने जो डिसाइड कर रखा है वो बना रखा है अपने ड्राफ्ट में कि ये स्टोर रूम है, और ये बोल रही है कि ये रूम बन सकता है और इट कैन बी यूज्ड फॉर माय मदर इन लॉ. ये रूम मेरी मदर इन लॉ का रूम हो सकता है, यानी कि घर में जो स्टोर रूम बन रहा है उसके लिए मिसेस मलिक कह रही है कि ये मेरी मदर इन लॉ का रूम बन सकता है. एंड आफ्टर सी हैड गॉन, उनके जाने के बाद हम इसको स्टोर रूम बना लेंगे. तो ये अपनी मदर इन लॉ के लिए सोच रही है. अपनी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये रूम 10/8 है, वो किस पर्पज से बनता है, कैसा बनता है, क्या होता है, उसका क्या यूज होता है, ये हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू.